graded to high school. Excellence in education, I empowering the future. کون سا اسکول میں؟ اپنے والد کے اسکول میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہیں شناسائی ہے میرے خیال میں، کہیں میں شناسائی ہے شعورس مختلف ہے. ملاقات بہت ہنگا آمت ہائی سکول واقع تک پہ وچن تہندس باب صبی سہ جائے تو حضرس تت مشین باسان تتان تک شعورس مجھ تھی کتس تور گھان ماہر بٹ اس مے سۭتۍ رٹائرڈ لیکچرر اور بیٚیہِ بشیر احمد خان پران مے تیلے کمے اس ونے کالج پتہ ہور کس کت پٲٹھۍ اوس آمُت سُہ تہِ اوس میٹر اسم شریف نور الدین بٹ نوردین بٹ روزان کتھ قاضی وہ وٹا پورہ اس بیہمو کُنہِ جایہِ بہت گھس سیودے کلاس میرے پاس بہت کم ٹائم وہ اس میں زندگی کی یہ میری تمنا تھی سمجھنا کو پورا کرنا چاہتا تھا. پی ایس میں تمو پڑھمت اخ لیسن بہت نہ بیمار خراب نذیر بن قریشی اپنے والد کے اس سکول میں جا رہے ہیں جہاں پر مرحوم علی محمد قریشی شہباز نے اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات گزارے ہیں. یہ ہے کہونسا ہائی اسکول. کہونسا ہائی اسکول ون آف دا گریٹ اسکول آف ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ. اپنے پرنسپل صاحب نور صاحب کے ساتھ جو جواب دینے والا ہو وہ کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں دعا ہے کیونکہ سلامتی کی دعا ہم کرتے ہیں، اس میں ایسے نہیں ہے. اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. میرے مذہب میرے دین میں یہ بڑی بات ہے کہ اگر کوئی جاہل بھی ملے سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے. اور بچوں کا جو میری کل کی متا ہے میرے بچے، کیونکہ یہ دانشگاہ جو ہے کیونکہ میرے اس کے ساتھ میں اس میں نہیں جاؤں گا، ہمیں بھی پڑھا ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ مکتب ہے ایک عمارت کا جس کی صنعت ہے روحی انسانی. کیونکہ ہم نے بلڈنگس نہیں بنانے، ہم نے ڈاکٹرز نہیں بنانے، ہم نے انجینئرز وہ بن جائیں گے، لیکن ہم نے ایک انسان کو بنانا ہے. کیونکہ ہم اس نبی برحق کے شہدائی ہیں، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی ہیں، جو فخر کیا کرتے ہیں کہ مجھے دنیا میں معلم بنا کے بھیجا گیا. اور وہی منصب، میں منصب کی بات، کیونکہ میں بھی ایک استاد ہوں، منصب کی بات نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اپنے اندر والے انسان سے پوچھنا ہے. کیونکہ للہ عرفہ دو انسان ہیں، ایک نذیر، میرا نام نذیر قریشی ہے، اور ابن شہباز بنیادی میرا اس گاؤں املال غلام ریشی علی محمد قریشی صاحب طالب علم روزمت سن شوقس من آمت. رہا ہوں کہ میں یہاں آؤں جہاں میرے ابا جان علی محمد شہباز صاحب وہ 1971 میں اس گاؤں میں تھے. کتنی یادیں جڑی ہوئی ہیں. تو میرے نبی برحق شاف محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فخر کیا کرتے ہیں کہ مجھے دنیا میں معلم بنا کے بھیجا گیا. اور جب میں اپنے آپ پہ نظر ڈالتا ہوں، للہ عرفہ کا نام سنا ہوگا آپ نے؟ للہ عرفہ کا نام سنا ہے؟ بات کرو نا میرے سے. سنا ہے؟ وہ للہ عرفہ کو کس کے نام سے پکارتے ہیں؟ کیونکہ میری بیٹیاں ہیں، للہ ایشوریا اور للہ عرفہ، للہ دید، للہ موج. کیونکہ یہ جو ہماری شناخت ہے کشمیری زبان و ادب کی، یا ہم ویلیوز کی بات کرتے ہیں، تو وہاں للہ عرفہ کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. للہ عرفہ کے میں نے کیوں کہا کہ یہ اساتذہ صاحبہ مجھے معاف کر لیں گے، میں ان کی سب سے کھڑا، لیکن اپنے اعمال پہ جو میری نظر ہے، جو مجھے کام تفویض کیا گیا وہ ہے شک مکتب ہے ایک عمارت گھر جس کی صنعت ہے روحی انسان. میں نے انسانیت کی تعمیر کرنی، کیونکہ ایک شاعر کشمیری شعر ادب کا طالب علم وہ کہتا ہے رب بناوا آدمس انسان بناوا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میری سب سے بہترین تخلیق جو ہے وہ آدم ہے، تخلیق آدم، کیونکہ کائنات کا تصور وہاں ہے. لیکن شاعر کہتا ہے میرے رب ذوالجلال کو آدم کو تخلیق کر، آدم کو انسان کے سانچے میں جو ڈالا وہ میرے نبی برحق شاف محشر ساقی کوثر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب میں للہ عرفہ کا ایک شعر میں، تب تک آپ ایگزام بھی دے دیں گے، تو للہ عرفہ کا ایک شعر میں ایک اس کے اشعار کو کیا کہتی ہے؟ واق. ویری گڈ. آپ کا نام بیٹے؟ ہاں عرفان ملک. آپ کہاں رہتے ہیں؟ یونسا میں. ویری گڈ. تو للہ عرفہ شیخ العالم شیخ نور الدین ولی علیہ رحمہ ان کی شاعری کو کیا کہتے ہیں؟
लल्लवाक शेख श्रुत लल्ला आरिफा कहती है गोरन वन्नम कुन गोरन, क्योंकि वो भी अभी मुतय्यन नहीं है, वो उसके पास मजहब का तस्वुर जब करते हैं सब कहते हैं लल्ला आरिफा हमारी है, हम कहते हैं हमारी है। वो कहती है गोरन वन्नम कुन वतुन निब्र दुपनम अंदर आतुन, यानी नज़ीर कुरैशी का जो बाहर वाला इंसान वो कुछ और बताता है, लेकिन अंदर वाला इंसान कुछ और बताता है। आप मेरी शक्ल, मेरी वज़ाकता, मेरी चाल डाल को देख के अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं नज़ीर कुरैशी जब तक ना आप मेरे मन को देखें, क्योंकि गोरन वन्नम कुन वतुन निब्र दुपनम अंदर आतुन सुई मिल ललगो वक्त वतुन तवे ललयुत नंगे नतुन। और ये फिर मन अरफा नफ्सहु फकत अरफा रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। मैंने चंद लम्हात आपके चुरा लिए, आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ आपके साथ बात करने की मुझे भी सआदत हासिल हुई। अल्लाह आपको सलामत रखे। और जिस मकसद के लिए आप यहाँ आए, एक मकसद है हुसूल इल्म जो है, उतलिबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, ये एक मकसद है क्योंकि दुनिया में जब भी हम देखते हैं इकरा पहली आयत इकरा, और देख लीजिए कितना है, और मुसलमान के लिए ये लाजिम है, क्योंकि मेरी बेटियों को आज कहते हैं लोग कहते हैं ये जो है बेटी अनमोल है, ये मेरे नबी बरहक शाफ़ी कौसर हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़ात अक़दस का है कि अल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। और बेटियों से मैं ज़्यादा ही कहूँगा, क्योंकि बेटियों अपने बेटी का किरदार अदा करना है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, हज़रत आशिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। और क्योंकि क्यों मैंने कहा किरदार अदा करना है, क्योंकि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमन्ना करते थे कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान ले आए अल्लाह के हुजूर में बार बार, क्योंकि उन्हीं के दम से ये सारी कायनात है जो उन्होंने अदल किया। तो उनकी तकदीर जो बदल डाली वो बेटी ने बदल डाली। और अल्लामा इकबाल को कहना पड़ा तुमी दानी के सोजे किरते तुमी दानी की सोजे, ये फारसी है, अब फारसी चली गई, अखलाक चला गया, उर्दू भी चली जा रही है, वो हमसे छूटी जा रही है, हम अंग्रेज हैं ना, इसलिए वो मैं इस वक्त नहीं करूँ। तुमी दानी की सोजे किरते तू दिगरगू कर तकदीर उमर रा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो तकदीर बदल डाली वो मेरी बेटी ने बदल डाली। और इसीलिए कहते आपकी ज़ुबान पे जहाँ नगमा हो, जहाँ कोई शलूक हो, वहाँ आपकी ज़ुबान पर कुरान, क्योंकि अल्लाह ने आपको लहन दाऊदी से नवाजा है। बेटी अनमोल होती है हर लम्हे। तो आपने, क्योंकि साथ ही कहा जिस दौर में हम जी रहे हैं, दौर बड़ा गठन अंधेरा है, और कहते हैं हया नहीं है ज़माने की आंख में बाकी, हया नहीं है ज़माने की आंख में बाकी, खुदा करे कि तेरी जुआनी हो बेदाग। आपको जब भी सांस लेना है तो आहिस्ता लेना है, क्योंकि मीर कहते हैं, मैं अदब का तालिब इल्म, मैं अब रुखसत होता हूँ, मुझे लगता है कि आप मेरे से बोर हो गए। तो मीर कहते हैं ले सांस आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम। कहते हैं सांस भी जब लेना हो तो वो आहिस्ता ले ली। बेटियों से कहता हूँ, बेटियों के पास अब फुर्सत कम है, वो भी हमारे अनमोल, लेकिन बेटी अब भी तारे अब्बू को अब सवेरे शाम के वक्त कहती अब्बू, अब गिला और सलीके से कहती है, उसकी अजमत है, बेटी की अजमत है। तो कहा कि यही कि हमने अपनी वो किरदार अदा करना है जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का किरदार। और जब हम देखते हैं कि बेटी जो है अब इसके हाथ में मोबाइल है, इसके हाथ में और भी कुछ है, इसने क्योंकि तुमी दानी के सोजे करते तो दिगरगू कर तकदीर उमर्रा। तो मैं इस अब्बाजान के 2 अशार आपके नाम करता हूँ, मुझे आपके साथ, क्योंकि आप इम्तिहान दे रहे, मैं चाहता था मैं आपकी क्लास ले लूँ, तो वो मुझे नसीब नहीं है, मैं 9वीं की ले लूँ, लेकिन अब्बाजान के 2 अशार, क्योंकि मैं 1971 से इस इलाके के साथ, इस गाँव के साथ, यूनुसा जो है इनके वालिद, इनको मैं आज ये मेरे बेटे हैं, इनको मैंने, और इल्म के जब मेरे साथ बात करते हैं मैं भी जुबान का था, ये मुझे भी हैरान कर दिया। ऐसा बात बता, इन्होंने मुझे कहा था आप बेटी बाड़ी पर इनकी पोस्ट, मैंने कहा नहीं, मैंने क्यों नहीं सजाना है, मैंने IDPS में क्लास लेनी थी, आज 12 बजे उन्होंने मुझे टाइम दे दिया। मैं दूर दराज अल्लाह के मावर से हूँ, बंगस के दामन में हम रहते, लेकिन इस इलाके के साथ मैं 1970-71 की बात करता हूँ। इनके वालिद मोहतरम जो हैं
उन्होंने मेरे अब्बा जान से कर दिया था। अब देखो मेरा इस इदारे के साथ तो उनके 3 अशआर, क्योंकि मेरे अब्बा जान की खूबसूरत गज़ल अगर आपने सुनी होगी, वो उन्होंने वुलर के किनारे आस्ताने आलिया जो है ना बाबा शुक्रुद्दीन साहब, आपको अजमत है, आप आस्ताने आलिया के दामन में हैं, इसके अलावा क्या आप क्यों नहीं कहूँगा। और उन्होंने थोत खुदाई ललवन तकदीर म्याने बापत क्या ओस ना कुने का तदबीर म्याने बापत बादे सबात वंजस चुनिस यनस प्यारा तद कर बस यो तकरीर म्याने बापत हर गस पर कुन विज तहरीर म्योन कसिर शारन से कर पान तफसीर म्याने बापत शहबार दूध लोलू लुकन फिक्री और बासा रोजिन ये दूध रोजिन जगीर मैंने बाप। और उसको इस अल्लाह के साथ ये वो 4 जुलाई 1996 को अपना ये रूह अल्लाह के सुपुर्द कर गए। 1957 साल की उम्र में उस वक्त प्रिंसिपल थे हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवारा में। यानी मुझे इस सरजमीन के जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ या जब भी मुझे कभी भी मौका आता है तन्हाई में, तो मैं क्यों न सकूँ मैं याद करता हूँ। इसलिए आपको मेरे साथ एक रिश्ता है और ऐसा रिश्ता है कि ये देख लीजिए मेरे बेटे, ये मुझे जब कहते हैं इनको कितनी खुशी होती है, कितनी खुशी होती है जब मैं इनके साथ और जब ये मुझे जुबान के नुक्ते बताते हैं। इसको अल्लाह ने रब्बे जुल जलाल ने सब कुछ दे दिया है। मुझे खुशी है कि मेरी यहाँ आई, मैंने इनके पास जाना था, ये मेरे लिए सादत है। आपका था अमलाल सही है। देखो ना, इससे मुझे कभी सादत है। तो ये शेर तो मैं कंक्लूड करूंगा। यत वावर देबिस्मन जाल शमा, यत वावर देबिस्मन जाल शमा जो वजगत खंड गाश वचन पत जालक जालुन क्रूड गजी ये कैसे बदल हु कार पदा। हमने आंधियों से नहीं डरना है, हमने चराग जलाना है और शब दैजूर को शब नूर में तब्दील करना है। देखो मैं आपको एक बस आखिर पर बताता हूँ, मेरे जज्बात है। मैं कहता हूँ मैं दिन भर आपके साथ बातें करता रहूँ। आप रात को नीलगू आसमान को देख लीजिएगा कभी। मैं अदब का तालिब हूँ। मैं जब अपने कमरे के आज चांदनी होती है, बड़ी खूबसूरत चांदनी होती है, चांद खूबसूरत है, लेकिन वहाँ एक नीलगू आसमान पर तारों की एक दरख्श और कहकशा होती है। तछो वुचमित जा तारा माचो वुचमित ना वुचमित चुन यत पे नज़ीर कुरैशियन तारक वुचुन कि मे क्या वुन यत वाव देबिस मन जाल शमा जो वदगत चु खंड गवाश वुचन पत जालत जालुन क्रूड गजी ये कैसे बदल हु कार पगा। और मैंने कहा क्योंकि शम्मा जलाना है, डरना नहीं है किसी से, आंधियों से नहीं डरना है। तो क्योंकि बुबन मत लकट का क्योंकि माजी मत कर दी का ये तारक पे वुचु ना तारकन से जुन मोज असमन इसको ये पे जुन मोज तम छा तछो मम्मी अस मोज आसान अस नान आसान अस जद आसान सो सना जुन मोज जुनी वो जुन मोज ये तमिस सिर बाव। अगर तुम मान कोर शाम सिर बयू जुन मोज से तह बसो नो तुम दपा शायर सितारे नूर देखकर रात से कुछ नहीं लेते। ये मे पन बोल ये मे कम ना मे अत मकसद सुबह क्या टाइम में अत पोस मगर तारकन हूँ वन मिसाल सितारे नूर देखकर रात से कुछ नहीं लेते। बस सुबह दपा मे वन तारक है नजीर साहब चाहो वो गाश अमिस पोस हम वन सुबह क्या सितारे नूर देखकर रात से कुछ नहीं लेते। शबे दैजूर वना अनिकटिस शबे दैजूर को करके मुनव्वर डूब जाते हैं। तुम लोसा तो मेन पगता इसके बावजूद में अब कल के दरख्शां सितारे हैं। आपने मेरी गाँव को संभालना है, आपने मेरी बस्ती को संभालना है, आपने मेरी वादी गुलपोश को संभाल और फिर मेरी बेटियों से मुखातिब हूँ। तो मैं इतना कहूँगा कि आपको घर भी संभालना है। तो मैं इसी के साथ रुखसत होता हूँ इन सबके नाम। मैं अदब का तालिब इल्म इसलिए माफ़ कीजिएगा। वहाँ लिखते हैं कभी बुझ नहीं सकती मेरे जुनून की मशल, लिखा है कभी बुझ नहीं सकती मेरे जुनून की मशल। मैंने जुल्मत को मिटाने की कसम खाई, मैं इसको बदल डालूंगा शेर को आज के दिन के लिए। कभी बुझ नहीं सकती हमारे जुनून की मशल,
मैंने नहीं ले लिया, हम सब ने ले लिया, क्योंकि हमने जुल्मत को मिटाने की कसम खाई है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। यम गए बहार साहब, तमनी तालब इलम साहब